ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಇನ್ನೇನು 2023 ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಶಾಸನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ, ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೇದರ್ನ ವೈಭವ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಧುರೀಣರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪದ ಸುರಿಮಳೆಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ಬರುವ 2023 ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನ ಕೇಳುವ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಾಯಕನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬರುವ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸರವನ್ನ, ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರ ಶಾಸಕತ್ವದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗು ಆಪ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂತಲೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ, ಆಪ್ತರಿಗೆ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 4-5 ಮಂದಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡರಾದ ಮುಜೀಬ್ ಖಾದ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಡವರ ಲೋನ್ಗಾಗಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ 10 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಶಾಸಕತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಹಶ್ಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು. ಬಡವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದೀನದಲಿತರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಶಾಸಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬಾರದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಎಂದು ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿನಃ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಾಣುವುದಂತೂ ಖಚಿತ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ್ ಸೇಠ್, ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸೈಯದ್ ತಲಾ ಹಶ್ಮಿ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಹಶ್ಮಿ, ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಅನ್ಸರ್ ರಿಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ವ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬಿಬ್ರು ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. सियासी वाबस्तगी से हटकर है यहाँ पे, इसमें हर जमात के लोग हैं. सिर्फ और सिर्फ हमारे इस मुल्क के एक बड़े कायद हमारे बीदर आए हैं, इसलिए हम कोई पार्टी पोजीशन देखे बगैर इसमें मस्जिद के जिम्मेदार लोग भी हैं, इसमें जनता दल के भी लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस के भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इसमें विकला हैं, डॉक्टर्स हैं और हुफ़ाज़ कराम हैं, उलमाए कराम हैं और हमारे सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं. तमाम लोग मिलकर यहाँ पे आपके सामने अपनी गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, अपना मसला रखने के लिए आए हैं. ये लोग सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं. ये बड़े फिक्रमंद हैं कि जमहूरी निज़ाम में, जमहूरी सिस्टम में हर 5 साल में एक मौका आता है, फिर उसे हमको अपना वोट डालकर, अपनी शहादत यानी गवाही देकर, वोट का शरई हैसियत भी होती है वोट की, वो है शहादत, गवाही. वो पूरी सोच के साथ, पूरी बेदारी के साथ हम गवाही दे रहे हैं, किसी के लिए शहादत दे रहे हैं, तो पूरी शऊर में देना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि मजबूरी है हम वोट डाल रहे हैं, किसी को जिता रहे हैं, किसी को अपना खायद बना रहे हैं. ये मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि पूरे शऊर के साथ होना चाहिए.
ये फिक्र इनके सामने है। तो इसमें मैं कुछ जिम्मेदार हजरात आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले मैं जनाब मुजीब कादरी साहब जो यहाँ के बहुत सीनियर कायद हैं, आज से 30 साल पहले सिटी म्यूनसिपलिटी के काउंसलर बने थे ये, जब इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से था, जब इधर में मुस्लिम लीग बहुत मजबूत थी। जब से अब तक आप हमेशा सियासी मामलात में बहुत सरगर्म रहे हैं, हर मिली मसले में पेश रहते हैं और हमेशा हर मसले पर पूरी जुर्रत के साथ, कहीं कोई आदमी गलत करता है तो उसको टोकते हैं, बल्कि रोकते भी हैं पूरी ताकत से। गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर ये हुआ है, ये हुआ है हमारे पास। इनका माइनॉरिटी की जो है लोन से आप इनकी फाइल उठा के देखिए माइनॉरिटी ऑफिस में जाके, जिसको दिए हैं लोन उसको डबल लोन मिला है। एक एक घर में 4 लोगों का लोन मिला है। माँ को मिला, बेटी को मिला, भाई को मिला, एक घर में। और जो जरूरतमंद है उसको 5 रुपए भी आप लीजिए। ये चला है ये 10 साल से। और हमारे लोग पता नहीं क्या समझ में है, बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। इनकी बर्दाश्त की हद है। हकीकत में सही मुसलमान है जितना बर्दाश्त। ये तमाम चीजें और इससे हटकर मैं बात नहीं लेता। और साहेब भी है बोलना चाहे तो ये दस्तूर जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान में। और क्या मैं बहुत कर सकता हूँ, 2 घंटे में तकलीफ कर सकता हूँ इस मौजू पे, लेकिन वक्त कम है। आप भी बाहर से आए हुए हैं। अब मैं जो है आखिरी एक बात बता के जाता हूँ। मैं सबसे अफसोसनाक बात, सद अफसोस बात वो ये है कि हम अपनी इस्लामी शनाख्त खो बैठे। आप फोटो देखिए, आप मोबाइल में देखिए, आप व्हाट्सएप पे देखिए, ये चंद वोटों की खातिर, थोड़ी सी शोहरत की खातिर अखियार के गोद में बैठ के वो काम कर रहे हैं आप जो एक मुसलमान को सेवा नहीं देता, वो मुसलमान नहीं कर सकता। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। इतना कहते हुए अगर मेरी बात से आप लोग मुत्तफिक है तो एक नए कायद को इसमें उभारेंगे और हम लाएंगे। और लोग क्या बोलते हैं कि लोगों का जहन है, आप अगर किसी के सामने ये बोलेंगे भाई अरे एक नया कायद को हम लेंगे, आपको लेंगे, अरे पैसा किसके पास है? उनके पास जितना पैसा उससे टक्कर लेने का। आपकी क़ियादत, आपके पास एक जिंदा मिसाल बिदर में मौजूद है जो कर्नाटक में नहीं है। जनाब सैयद जुल्फिकार हाशमी साहब के पास क्या था? लोग आज भी याद करते हैं। वैसा एमएलए ना बनिया ना बनता, वैसा एमएलए वैसा। तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? की झूठी के बराबर भी जब आप तैयार हैं अपने आप को उनके लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं, हक के साथ आवाज उठाने के लिए, किसी आदमी को नए क़ियादत के लिए तैयार है, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। हम थे जुल्फिकार हाशमी साहब, सैयद जुल्फिकार हाशमी के साथ उस वक्त कांग्रेस की हालत हाँ। 5000 के अंदर आ गई थी। ये हालत करके रख दिए। मीटिंग करके हुआ था काम। हम चाहे अगर कौम अगर चाहे तो अल्लाह की मदद आती है और हम बदल कर रख देंगे। अगर इनको जो है यहाँ हम कांग्रेस की क़ियादत से ये गुजारिश करते हैं, अदबान गुजारिश करते हैं कि इनको टिकट मत दीजिए, किसी को भी टिकट दे दीजिए और हम लोग इंशाल्लाह जो हो सकता है अपने से करेंगे। नतीजा अल्लाह के हाथ है। एक जंगल में आग लगी हुई थी और वो जंगल के आग में चरिंद परिंद सब भाग रहे, शेर भी भाग रहे, हाथी भी भाग रहे, जानवर भी भाग रहे, सब भाग रहे। तो एक चिड़िया दूर से जा रही है, अपने चोंच में पानी का दाना लाके जो है वो आग पे डाल, तो शेर बबर वगैरह उसको बुला के बोले कि दीवानी हो गई तू, इतनी बड़ी आग जमीनों फैली हुई है, ये आग जो है तेरे एक चोंच से एक नुक्ता डालने से जो है दाना तो पानी का खतरे से जो है क्या ये आग बुझ सकती है? तो उन्हें बोली भले से ये आग बुझे ना बुझे, लेकिन कल जब क़यामत बर्पा होगी और अल्लाह ताला मेरे से पूछेगा कि मेरे जानवर जल रहे थे, आग लगी हुई थी, हर एक जानवर जल रहा था, तू क्या करी? तो मैं बोलूंगी मेरे कुव्वत में जो था एक खतरा पानी में डाली, आग का बुझाना ना बुझाना तेरे तरफ, आग का बुझाना ना बुझाना तेरे तरफ। तो
हम वो खतरा डालने के लिए तैयार हैं। मुकद्दर हमारे हैं, किसी के आने से हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी के नहीं आने से। और आज की ज़ियादत भी नहीं होने के बराबर है, हम जी रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह चाहते जीएंगे, चाहे हमारा कोई इतना बिल्कुल। तो इतना बोलते हुए अपनी बात है। ऐसे 2-4 इश्यूज थे सर जो मैं अब्दुल रहीम खान साहब के सामने रखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, और मैं हमेशा उनके मुखालिफत रहा। मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद जुल्फिकार हाशमी बिदर के एमएलए थे, तो हम हमेशा उनके खिलाफ रहे। आज यहाँ पे बात मैं खिलाफ होने के नाते नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ तो आप लोगों के बीच में रहते हुए बात करना चाह रहा हूँ। एक इशू था तबलीगी जमात का सर, जो सारे इंडिया में तबलीगी जमात के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए थे, तो बिदर में भी ऐसी एक जमात आई थी किर्गिस्तान से। वो लोग मस्जिद में फंसे हुए थे, उनके ऊपर एफआईआर हुआ था, तो उसकी कार्रवाई की गई, उनके बेल दिया गया। वो कार्रवाई बेल वगैरह मैं ही कर रहा था। बेल में कंडीशन आया था कि जैसे ही उनको रिलीज किया जाए उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज देना है। और जस्टिस हाईकोर्ट जज का एक ऑर्डर था सिमिलर केस में, बांग्लादेश के जो लोग ऐसे हुए थे, तो यहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर सारे कर्नाटक में बनाया जाए। कर्नाटक में तो नहीं बने, एक बैंगलोर में माइनॉरिटी हॉस्टल को डिक्लेयर किया गया कि वो डिटेंशन सेंटर है, मगर वहां पे अभी तक कोई रहा नहीं था। तो मैं जाके जब डीसी साहब के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा कि देखिए सर, ये ऐसे हालात में जो कोविड है, इनको यहाँ से बैंगलोर तक ट्रैवल करना मुश्किल है और डिटेंशन सेंटर कहीं अवेलेबल नहीं है, क्यों ना एक टेम्पररी डिटेंशन सेंटर हम इधर में ही बनाए। वो गेस्ट हाउस की शक्ल में हो सकता है, या जब शाहीन कॉलेज जो कोविड के लोगों को रख रहा था वहां पे एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। मैं एक रिप्रेजेंटेशन रखा, तो डीसी साहब बोले कि मैं इसको कंसिडर करूंगा। तो थोड़े ऐसे ही लोग जिम्मेदार साथ गए, फिर मुझे भी फोन किया कि आप एडवोकेट है, आपको आना पड़ता। तो अब्दुल रहीम खान साहब भी वहां पे थे। तो मैं रहीम खान साहब को बोला, थोड़ा सा फोर्स कीजिए रहीम खान साहब, हमारे लोग यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है, आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट लेटर लिख दीजिए, आप एक रिप्रेजेंटेटिव है कि एक डिटेंशन सेंटर यहीं बनाए। तो अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं और किसी को गवाही नहीं रखते हुए वो बिल्कुल काम नहीं करे। उन्हें वो दर्द ही नहीं था। वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, 30 दिन से जेल में हैं, मैं डिटेंशन सेंटर की रिक्वेस्ट कर रहा था, जो बहुत आसानी से हो सकता है। जबकि डीसी और जबकि एसपी हमारा साथ दिए और बिदर में फिर एक बार मरकज को वहीं पे रखे, मरकज के बाद 2 रूम बना के हम उसी को डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर करें। ये हालात। और कोविड में हम, मेरे वालिद मोहतरम जब जिंदा थे, तो शायद ऐसे हम जब नींद में से उठते थे, ब्रश करते, नाश्ता करते ही हमको ये बोला जाता था, जाओ, मैं और मेरे चाचा सरफराज हाशमी दोनों, जाओ लोगों को कहाँ कहाँ तकलीफ है वहां पर उनके पास उनकी तकलीफ दूर करके आओ। चाहे पुलिस रहने दो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रहने दो, तुम दोनों एडवोकेट हैं, उनका सामना करो और जाके उनकी मदद करो। ऐसे हालात में जब बिदर के शहर में एक कहर मचा हुआ था, लोग परेशान हाल थे, बाहर निकल नहीं सक रहे थे, तरकारी भाजी जो डेली नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर सक रहे थे। ऐसे हालात में भी अब्दुल रहीम खान साहब से मुलाकात हुई और अब्दुल रहीम खान के जो लोग हैं, आसपास जो लोग बैठते हैं, उनके थ्रू में ये बोल भिजाया कि जो पेंडेमिक एक्ट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में सेंट्रल में पीएम उसका चेयरमैन रहता है, स्टेट में सीएम उसका चेयरमैन रहता है, और बात जब डिस्ट्रिक्ट की आती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसका चेयरमैन रहता है, और आप उसके मेंबर हैं। ये जो भी यहाँ पे हालात हो रहे हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। आप अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए, बोलिए मेडिकल और हॉस्पिटल्स खुले रहना है, जब भी उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। ये हालातों की वजह से आज आपके सामने इतने लोग जमा हुए हैं, इनके इतने अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। मैं हमारे अली अहमद खान साहब की बात से बिल्कुल मैं उनके साथ में हूं कि उन्होंने बोला अगर कांग्रेस सही कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी तो इंशाअल्लाह हम भी हमारा कैंडिडेट बिल्कुल बदलेंगे। वो शायद हमारे घराने से भी हो सकता है, और अगर ये बात आएगी सर कि और एक कैंडिडेट अगर आ गया, एक मुसलमान कैंडिडेट के सामने अगर दूसरा मुसलमान कैंडिडेट आ गया, तो शायद ये सीट हम खो देंगे। खोने के लिए हम रेडी हैं, मगर ऐसे आदमी को हम अपनी शक्ल में हमारा एमएलए हम नहीं देख सकते। ऐसे आदमी को जो जनाब सैयद जुल्फिकार हाशमी थे, मैं आज उनके बेटे के नाते नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक कॉमन आदमी के नाते बात कर रहा हूं, मैं एक एडवोकेट के नाते बात कर रहा हूं। शहरियाने बिदर, यहाँ पे मौजूद शहरियाने बिदर का इजलास बुलाया गया। इस इजलास का मकसद हालिया
आने वाले असम्बली इंतखाबात को लेकर क़यादत की तब्दीली सबसे अहम मौजू है। लेकिन मैं वक्त न होने की वजह से अपनी बात मुख्तसर अंदाज में थोड़ी सी बात रखकर बात को खत्म करता हूँ। मुखालिफत और तायीद जमहूरियत के दो खूबसूरत पहलू हैं। अगर इस पहलू को आप उसके नजरिए के मुताबिक पेश करेंगे तो उससे बहुत फायदा भी हो सकता है, और नजरिए से हट के अगर पेश करेंगे तो उससे नुकसान भी होते हैं। और रही बात यहाँ पे हमारे सामने जो हमारे मेहमान खुसूसी हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रहे और कर्नाटक स्टेट के अंदर कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, आज शहर बीदर के अंदर वक्त की अशद जरूरत यह है कि क़यादत की तब्दीली, और क़यादत की तब्दीली क्यों और कैसे, और खुदारा मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात कह रहा हूं, मैं किसी की तायीद में और किसी मुखालिफत में नहीं कह रहा हूं। ये शहर बीदर के अंदर आज अवाम का ये जहन बन चुका है, क्योंकि हमारी क़यादत, हर कौम का एक मकसद होता है कि अपनी क़यादत को अवाम में मुंतकिल करके पहुंचाने के लिए कि उसकी मुंह में उसकी जबान और कौम के ताल्लुक से, या हमारी क़यादत तो बेजबान गूंगी है। इसीलिए क्योंकि हमने 2019 से सीए के मसले को देखा, एनआरसी के मसले को देखा, और ट्रिपल तलाक के मसले को देखा, हिजाब के मसले को देखा, और लोकल में महमूद गवान के मसले को देखा, नुपुर शर्मा के प्रोटेस्ट को देखा हमने। लेकिन अफसोस, मैं हमारे हिंदुस्तान के कायद के सामने बात रखना चाहता हूं कि हमने 70 बरस से अपने वोट का ठेका माफ के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन जब ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से असेंबली में कोई मुस्लिम कायद बोलने के लिए उठता है तो आपके कर्नाटक स्टेट के सदर डी.के. शिवकुमार उनको बिठा देते हैं। क्या मैं पूछता हूं कि हम हमारे वोट सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए है, क्या कौम के लिए खाली इस्तेमाल करेंगे हमारा वोट? मेरा मुतालबा है आपसे कि इस शहर के अंदर वक्त की जरूरत यह है कि हमारी क़यादत और को तब्दील करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे मुतालबा करता हूं, क्योंकि अक्सर और पेशतर मुसलमानों के मसाइल के मुताबिक जो बरकरार इक़्तिदार हिंदुस्तान में जमाते रही है, इजलास बुलाती है, इजलास खत्म होता है, फिर वो अपने काम पे, फिर हम अपने काम पे। ऐसा ना हो। आपसे हमारा मुतालबा है कि आप दिल्ली, बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक शहरी बीदर की अवाम ने आपसे जो मुतालबा किया, इसके मैसेज को आप अपने हाईकमान तक पहुंचाइए और क़यादत तब्दील करिए। और दूसरी बात सर, इतने अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक शहर की 650 साल पुरानी तारीखी इमारत के अंदर एक हादसा पेश आया और कौम की आबरू व इज्जत एक फिरका परस्त तनाज़ुरों के हाथ में लुटती रही, और हमारी क़यादत दिन रात में एक प्रोग्राम में नाचती रही। यही करना हमारा मकसद है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और जब लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान है दाने दाने के लिए, दवाई के लिए, गोली के लिए। जो गोली की कीमत 1.5 रुपया थी, वो गोली 150 रुपए में बिकी है। और ये हमारी क़यादत नई कमान में ठहर के बोलती है कि मुसलमान 7 महीने में पैदा हुआ। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि 7 महीने की पैदाइश का मुसलमान कौन है, और आप जवाब देना। और इंशाअल्लाह ताला हालिया इंतखाबात के अंदर आपसे पूरा सवाल किए जाएंगे, और कांग्रेस की क़यादत से की जाएगी, और कांग्रेस के हिकमान से किए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कई वक्त में इनकी अदम मौजूदगी, लॉकडाउन में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। मुसलमान आपको इसलिए वोट नहीं दिया है। मैं भी एक जमात से ताल्लुक रखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त अगर क़यादत की तब्दीली नहीं होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा हाईकमान भी इस बात की गौर फिक्र करने वाला है कि यहाँ के उम्मीदवार के ताल्लुक से क्या करना है। और हम ऑलरेडी मन्नान सेठ को दावत दे चुके हैं, और मन्नान सेठ से हमारा मुतालबा है, क्योंकि मैं जमहूरी मुल्क में रहता हूँ, मेरा जमहूरी हक है, मैं जमहूरी हक में पूरा बोलने का इख्तियार है मुझे। लेकिन हमारा के.रहमान खान साहब से मेरा मुतालबा है, अगर आप बीदर के मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, बीदर के मुसलमानों से आपको दर्द है, जिस तरह आपने आज इजलास में के टाइम दिया, उसी तरह इस मैसेज को अपने हाईकमान तक पहुंचाइए और यहाँ की क़यादत की तब्दीली की कोशिश कीजिए। वरना आप क़यादत तब्दील नहीं करेगी तो सन 1994 की तारीख गवाह है, बीदर के वहां क़यादत को उल्टा कर जाएगा। और हर एक बात, एक लास्ट बात कहना चाहता हूं मैं, बीदर के पहले एमएलए मोहम्मद शफीउद्दीन साहब मुंतखब हुए, उन्होंने अपने एक अल्टरनेट तैयार किया। उस अल्टरनेट का नतीजा ये निकला, लैफुद्दीन साहब, मोहसिन कमाल साहब, मकसूद अली खान साहब, एक पैनल निकला। उसके बाद मकसूद अली खान साहब आए, उन्होंने एक पैनल तैयार किया, मोहसिन कमाल आए, एक पैनल तैयार किया, लैफुद्दीन ने एक पैनल तैयार किया। लेकिन आपकी जो मौजूदा क़यादत है अल्टरनेट को काट दे रही है और क़यादत का खात्मा कर दिया टोटली। सीएमसी, टीएमसी, तालुका पंचायत, जिला पंचायत सब दूर। तो सर, मैं नजरत खाई से अगर मेरे अल्फाज से किसी को अगर तकलीफ पहुंची तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपनी जमात से बिल्कुल, मेरा हक है जमहूरी में आपके सामने मुतालबा कर रहा हूँ
कि आप फौरी ये मैसेज अपने हाईकमान तक पहुंचा के शहर बीदर की क़यादत की तब्दीली के ताल्लुक से आप मुस्बत कदम उठाना, जैसा कि आपने साथी ने बोला कि ए को बी को ए बनाते हैं, तो हम देखेंगे आप ए को बी सी को ए कैसा बनाते हैं।